So hello everyone, this video will be helpful for those students who ever coming to Milan or those students who have DSU scholarship. So in this video I am going to tell you how to use your Mensa card for buying the food stuff from the supermarket. So friend, the first of all, when you come to Italy, then you have to go to your university to collect the card that is called poly card or something. If you go to your university, then in the international office they will give that poly card. So after that poly card we have to activate it. So in order to activate, we have to go to the university portal, and in the university portal there will be one option for activating the card. So I think it will take 1 week to get activation of your card. So that card and Mensa card, everything is same, because in that there will be like your university name, that is Politecnico di Milano, and your name, details, etc, etc. It is like ATM card here, okay? So that will act as Mensa card. So don't confuse that Mensa card is different and the university card is different. All the same, okay? So after that activation of your card, you have to download Blue Ticket app in your mobile, okay? So if you download that Blue Ticket app and if you fill all the information of your card in that Blue Ticket app, then it will show you the location of the supermarket and location of the restaurant from where you can use your Mensa card, okay? So the Mensa card is not useful in all the supermarkets, so it have only limited connections with some supermarket. There only we can buy. And friends, I want to share one thing, because due to COVID and all, last year the rule was different for using the Mensa card, and from this year the rule is different, because last year we can use like €5 per day, and we can use like €35 in a week at the same time to buy the food stuff. So there was that rule was very good. But from this year we have to use €5 per day only. For example, if you are not using €5 for this day, by 12 o'clock in the midnight, that €5 will expire. So again next day another €5. So we have to go daily to the supermarket to buy the food stuff, otherwise we will lose that €5. And also friends, for the month of August, okay, so the Polycard or Mensa card, it will work 11 months in a year. So whenever you are coming, it will be available throughout the year, but for the month of August it will not be available. So those whoever living in the month of August, then they have to pay from their own pocket in order to eat or in order to buy something. So in the month of August the Mensa will not work. So friends, now I will show you how to buy that food products from the supermarket. This is the one supermarket, that is Carrefour. This is a symbol of Carrefour, and we can see this is the supermarket. So I came here. So this is automatic. So friend, this is my Mensa card, that is Polycard. So first of all, after entering into the supermarket, we have to take this to this machine and we have to insert in this. So it will generate one ticket, that will be for €5. See, so we have to do shopping only for €5. Otherwise you have to pay if you are doing extra, okay? So this is the coupon for 3 to 5 students, that is for €5 each. And here first of all we have to take the gloves due to corona, because they are giving free gloves etc. So don't worry for like don't do कंजूसी वगैरह, कंजूसी मत करना. तो यहाँ पे ग्लव्स वगैरह पूरा देते हैं, तो ग्लव्स पहन के हम लोग को फ्रूट्स वगैरह को टच करना रहता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा. So for example, the price of grapes, so it is €2.98 per kg. So here everything will be in euro, so I'm not going to show the price rate in Indian. So you have to convert. For example, €1 is equal to 90 rupees, I think so. And here for every fruits and vegetable we have to do self weight and we have to do self pricing. So this is the common, I think. And friend, one thing you have to remember while going shopping with Mensa, we have to calculate exactly €5. If you are keeping even for less than €5, even 10 cents, for example €4.99, okay, then also they will not accept. So exactly €5 or more than €5, that is €5.1 you can take, and €1 you have to pay, okay? And friends, here whatever the price you are saying, that is per kg, especially for fruits and vegetables. So just see what is price, and then you will get some idea what is the like average cost for fruits and vegetables, okay? So friends, now I'm going to speak in Hindi, so please English people, please see the price and calculate it.
तो देखिए अभी यहाँ पे आपको सब बताने जा रहा हूँ। टमाटर आपको 200 से 300 रुपये के अंदर मिल जाएगा पर केजी हिसाब से, ठीक है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। और अगर आप मार्केट में जाओगे, खुले मार्केट में, वहाँ पे कम में मिल सकता है। केला अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 रुपये किलो मिल जाएगा आपको। और फिर और जितने फ्रूट्स है पूरे किलो, और दिख रहा है ना वाटरमेलन, ये 50 रुपये किलो, कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये अंगूर आपको मिल जाएंगे 100 से 150 200 रुपये किलो मिल जाएंगे। और जो मज़े की बात है, यहाँ पे मूँगफली देखिए, ये मूँगफली है ना, 1 किलो का एक मूँगफली है, कितना है मालूम है? 300 रुपये किलो, 300 350 रुपये किलो। और बादाम का रेट अच्छा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ के जी, कोई ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसे, इसका नाम ही मैं भूल गया, तो इसका भी जो भी है लाइक 700 कोई ज़्यादा नहीं है, अच्छा ही रेट है। और बाकी क्या आपको दूध मिल जाएंगे, तो दूध भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 सेंट से, मतलब 50 रुपये से 100 रुपये के और 150 के 200 के बीच में मिलेगा, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। तो इतने लीटर आपको 60 रुपये लीटर से शुरुआत होगा दूध, क्वालिटी के ऊपर और डिपेंड करता है प्राइस भी। और अंडे वगैरह जो भी लोग खाते हैं उनके लिए अंडे का भी जैसे 1.5 यूरो से 2 यूरो से स्टार्ट होता है, तो मतलब 150-200 से स्टार्ट होता है अंडे का। देखिए 6 अंडे हैं इसमें, तो ये कितने का पड़ रहा है, कितना 2.25, मतलब 200 रुपये का 6 अंडे पड़ रहे हैं। इसके हिसाब से आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा कितने का मिलता है इंडिया में। और फिर यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स है, तो जितने लोग भी खाते वगैरह, तो कॉर्नफ्लेक्स भी आपको मतलब 100 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, 100 रुपये से 150-200। तो शायद मेरे ख्याल से कॉर्नफ्लेक्स का रेट अच्छा है, ऐसे इंडिया में भी मिलता होगा मेरे ख्याल से, उतना नॉलेज नहीं है फिर भी। और फिर बिस्किट देखिए, बिस्किट अभी देखिए ये है 150 से 100 रुपये से बिस्किट शुरुआत होता है। जो अपने यहाँ 10 रुपये का 5 रुपये का बिस्किट मिलता है, आपको यहाँ पे 70-80 रुपये का मिलेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर होकर आइएगा। और फिर एक कॉफ़ी वगैरह देख लीजिए नेस्कैफे का, तो 300 और 350 से स्टार्ट होता है, 200 से वाले भी, इसमें भी क्वालिटी के ऊपर, तो 200 के नीचे नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे चाकू देख लीजिए, तो आइएगा चाकू लेकर आइएगा, क्योंकि चाकू वगैरह आप देखिए अभी ये सेट का है, कितने का 400-500 का सेट है। और लेमन स्क्वीजर है कितने का 7 यूरो, मतलब 650 का एक लेमन स्क्वीजर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे और भी सामान आपको दिखा दे रहा हूँ। और देखिए जो भी बर्तन वर्तन रहना चाहिए, क्या बोलते कलछू वगैरह, तो आपको उसमें 200 से 250 रुपये की कलछू यहाँ पे मिलेगा। तो आप कुछ नेसेसरी रहेगा तो आप लेकर आइएगा, बाकी का सामान यहीं पे मिलता है। और देखिए लकड़ी वाला सेट है ना, ये आपको मिलेगा 350 रुपये का, ये कलछुल हमारे भाषा में बोलते हैं इसको। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए, ये 200 का है, 200-250 का, तो 150-200 का छोटा सा कप है। तो अब इसके हिसाब से आप अंदाज लगा लीजिएगा कि अपने यहाँ जो मिलता है। और देखिए कप है ना, ये 550 रुपये का पड़ेगा लगभग, मैं अप्रॉक्सीमेटली रेट बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। और लेमन टी वगैरह देख लीजिए, लेमन टी ओके कोई बात नहीं है, 100 रुपये, 120, 130, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा रेट है लेमन टी वगैरह का। और बाकी का देखिए हनी यहाँ पे, तो हनी का रेट कितना है, ओके 1000 रुपये में 1 लीटर, कोई बात नहीं, अच्छा सा है। और देखिए यहाँ पे कुरकुरा देख लीजिए, तो कुरकुरा जैसे तो रोस्ट हो गया, कुरकुरा कितने लोग खाएँ, तो 100 रुपये में ओके। इसके हिसाब से कोई बड़ा सा पैकेट है 100 रुपये, ओके चलेगा, आराम से चलेगा ये ओके। और फिर यहाँ पे टिश्यू पेपर वगैरह जो भी लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे मतलब कॉमन है टिश्यू पेपर, तो आपको टिश्यू पेपर भी 100 रुपये से शुरुआत हो जाएगा, 100 रुपये से 150-200 रुपये में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे टिश्यू पेपर। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्लेट है, प्लास्टिक का प्लेट है, तो अभी हम लोग नहीं कभी बाहर जाते खाने पीने का, ये देखिए कितने का है, 350 रुपये का 10 प्लेट। और ये चाय पीने वाला कप पेपर वाला, ये कितने का मालूम है, 150 रुपये का, 100 रुपये का 150 रुपये का कितना 10-15 कप हैं। और प्लास्टिक का चम्मच, हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो उसमें ये डालते हैं, कितने का वो 200 रुपये का। और ये देखिए कितने का है, ये भी 150 रुपये का। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये सब सामान का रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग बनाते नहीं है, ज़्यादा करके इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा कॉस्टली बेचते हैं। और यहाँ फिर आपको मसाला, मर मसाला मिल जाएगा, धनिया और ये लहसुन और हल्दी वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। तो कितने का 100 रुपये का, 150 रुपये का, सब ऐसे बॉटल में पैक करके 100-150 में ऐसे बेचते हैं वो लोग। तो बहुत सारे मसाले हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो इसके हिसाब से मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि कि आपको एक मतलब एवरेज पता चले कि कौन सा सामान कितने का अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। आप किसी भी मार्केट में जाओगे तो थोड़ा सा बहुत मतलब 10-20 सेंट का फ़र्क पड़ेगा,
और बाकी का पूरा से जो रेट रहेगा सेम ही रहेगा। और देखिए पास्ता, तो यहाँ का पास्ता बहुत फेमस है, तो पास्ता यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है और दूसरे चीज़ से कंपेयर किया जाए तो पास्ता आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। मतलब 40 रुपये में, 50 रुपये में, 60 रुपये से शुरुआत होता है पास्ता और जाता है 150-200 तक, ऐसे क्वालिटी के ऊपर जाता है, कुछ बायो का रहता है। तो पास्ता मेरे को बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाता है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे भी मतलब 0.5 सेंट्स, 0.6 सेंट्स में ऐसे है, तो पास्ता बहुत चीप है यहाँ पे। और देखिए केचप वगैरह भी देख लीजिए, आपको वही कोई भी मिनिमम आपको ये 1 यूरो से स्टार्ट होगा, मतलब 100 रुपये से। और कुछ फ्रोजन प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो मैं आपको सब नहीं दिखाने जा रहा हूँ, कुछ दिखा। देखिए तेल है सनफ्लावर का, तो 1 लीटर का मतलब ओके 180 रुपये, 140 रुपये, ठीक है कोई बात नहीं, तेल अच्छा रेट है यहाँ पे भी। और ये भी मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा तेल ले रहे हो। अगर मान लेते ऑलिव ऑयल लेते हो तो ऑलिव ऑयल का रेट मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। 1 लीटर का कितने का है, ओके 750 रुपये, 800 रुपये 1 लीटर का पड़ रहा है ऑलिव ऑयल का रेट। तो अच्छा है, ऑलिव ऑयल का रेट देखा तो अच्छी बात है, कोई उतना ख़राब नहीं है। और फिर अगर टोमेटो कुछ है, पूरी वगैरह कुछ है टोमेटो का, केचप वगैरह, तो आपको ऐसे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और फिर हाँ चॉकलेट तो एक्चुअली ये उतना खास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा चॉकलेट के लिए, क्योंकि एक मिलान में एक है चॉकलेट का शॉप बहुत ही फेमस है, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि इटली बोले तो चॉकलेट के लिए बहुत फेमस है ना, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो दूसरा बात आता है ब्रेड का, तो ब्रेड आपको मिल जाएगा मतलब 60-70 रुपये से शुरुआत होगा और 150-200 से जाता है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। तो ब्रेड एक बेसिक फूड है, तो आराम से आपको 40-50 में मिल जाएगा। और देखिए रोटी, जो बनाया रोटी है, इसमें लोग बायो वगैरह डाल के बेचते हैं, तो 10-15 रोटी का दाम है 100-150 से चार्ज करते हैं लोग। तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको एक पता चले। देखिए हमारे गांव में जब रहते थे खाते थे, क्या कुरकुरा उरकुरा बोलते थे, नहीं फोफी वोफी, वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कुछ देखिए कंघी जो है, तो देखिए कंघी 400-500 के नीचे आपको शुद्ध कंघी नहीं मिलेगा। और एक बार ये देखिए, ये छोटा सा जो कंघी है, ये अपने यहाँ 10 रुपये में मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 450 का बेच रहे हैं सब कंघी। और ये हमारे बहनों के लिए कुछ जुड़ा उरा है, तो वो भी लोग देख लीजिएगा रेट वगैरह कितना है इसका। तो और देखिए यहाँ पे मैं मंजन दिखा दी, सेंसोडाइन मिल जाएगा आपको, कोलगेट मिल जाएगा। तो इसका भी रेट मतलब कोलगेट का रेट चलो ठीक है, मानते कुछ ओके, थोड़ा उतना कॉस्टली नहीं है। लेकिन ब्रश जो मिलता है ना, अभी आपको ब्रश दिखा रहा हूँ, ब्रश यहाँ पे इतना कॉस्टली मिलता है। देखिए 23 यूरो का है, मतलब लगभग 2000 का एक ब्रश है, वो इलेक्ट्रिक वाला है। और देखिए आपको कोनो भी ब्रश आपको 100 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा यहाँ पे। एक छोटा सा ब्रश ले लो ना, 100 रुपया से, 150 से, 200 से शुरुआत होगा। तो बस आपको दिखा दे रहा हूँ। मंजनों के पेस्ट कोई बात नहीं है, बल्कि ब्रश की बात मैं बोल रहा हूँ। और फिर यहाँ पे और सारे आपको क्या बोलते हैं, अलग अलग से प्रोडक्ट्स हैं, और ये सब मुझे उतना नहीं मालूम है, बस इसके लिए मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊँगा। और यहाँ पे देखिए जिलेट आपको 400-500 में 450 मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं एक आपको कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ सेल देख लीजिए, बैटरी आपको 400 में 500 में मिल जाएगा, एक 4 बैटरी का सेट। एंड फ्रेंड्स फाइनली वी डन all our shopping and we are 4 because we have to use our Mensa card, so we came 4 for the shopping. And after doing all this we have to go for billing and all, so let's see how they are doing. And these are my friends and they are all from Polyme and from all mobility engineering, so we have bought everything. So and one thing friend, with this Mensa card we can buy only food products, not like some clothes or some electronic items, only the food products, whatever the edible items are there, we have to buy that only. Okay, so please keep remember this point when you are going to use. Okay, see this is my friend, and I will make a video in future with him because he know many things, so he will share his experience, etc. So see, that is the Mensa card, that is the ticket whatever we have taken from the Mensa card, so that will act as a money for us. So finally this is the billing for us, as you can see she is billing all the products. So friends, those who have the DSU scholarship, then they are going to get these all benefits and they have to use this. So friends, see this is the money, that is our coupon, it will work as a euros. So she is simply counting it, how many tickets are there, that is coupon, and she will deduct the amount from that, so we no need to pay any cash or something, etc. So this is all things. And friends, see this is the traveling bag, so we have to buy this type of bag in order to make easy for the traveling, because we can't carry all the
weight on our bag, so this will be convenient for you.